مطلب کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کرو گی اور کیا ایسی چیزیں جو نہیں کرو؟ چیخ ڈرامہ یاد ہے؟ مجھے نہیں ہوگا کس کو ہوگا. تو پھر مجھے بتائیں کہ چیخ ڈرامہ میں آپ کا جو کیریکٹر ایوالو ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ ایوالو کہاں ہوا تھا, کاٹ دیا گیا تھا. کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا نو وے, اب یہ مجھے کیا تھا, لائک آئی ہیو ٹو ہینڈل ایوری تھنگ, دس از مائی شو. اور اس زمانے میں شائستہ لودھی, وہ مجھے نہیں پتا, بٹ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اندر سے خوبصورتی ضروری ہے, ورنہ آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت لوگ ہوں گے, منہ کھولیں گے آپ کہیں گے. اس شو کے ذریعے میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, بیکاز بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, تم تو کہتی ہو تم اکیلی ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے تو بتاؤ. اچھا کیا بینش, آئی لو ہاؤ یو آسکنگ می کوسچنز, بیکاز میں تمہارے میں نے کہوں گی تم شو کے آپ نے وی جے بھی بنایا ہے, آپ نے ماڈل بھی کیا ہے, آپ نے ایکٹنگ بھی کیا ہے. وچ ون آف دوز جابس از یور فیوریٹ؟ یہ ہوتی ہیں کبھی جم سے آتے ہوئے اسٹوری بن رہی ہوتی ہے آپ کی, یہ جم سے واپسی اور آنے جانے والی اسٹوریز جس میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں وہ کافی ہٹ ہیں. کہاں شفٹ ہو گئی ہو, لنڈن یا نیو یارک یا؟ میں نے کہا بھائی کراچی میں رہتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ریالٹی شو کیا تھا تماشا. میں نے کہا تھا نہیں, I swear this came randomly. ہائی, دس از بینش پرویز, اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ خوابوں کی دنیا کی ایک خوبصورت پری ہیں جو جہاں جاتی ہیں اپنی خوبصورتی, اپنی مسکراہٹ اور اپنی لائیولینس, اپنی پازیٹیونیس سے جو جادو چھڑکتی ہیں اور اس پوری انرجی کو جو ہے وہ اس جگہ کو اپنی انرجی کے ساتھ جو ہے وہ what can I say, like the magic she spreads, I swear I cannot explain it in words. اور without further ado میں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروں گی مائرہ خان سے. السلام علیکم. I am on cloud 9 right now. ہے نا, مطلب اتنا کیوٹ انٹروڈکشن نا میرا آج تک کسی نے نہیں دیا. I think this is only because you know me so well. yeah. تو تم جانتی ہو میں اندر سے ایک پری ہوں. سوری آج میں اپنا میجک پوشن لانا بھول گئی ہوں, وہ میں نے اسپریڈ نہیں کیا, اسپرنکل نہیں کیا, بٹ پھر بھی مزہ آیا نا میں آئی ہوں جب. تو بینش از آلویز. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا جادو ہے, یہ کیا ہے؟ آئی تھنک بینش پتہ ہے کیا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئی جسٹ کیپ مائی سیلف ہیپی, اینڈ کیپنگ یور سیلف ہیپی از اے ٹاسک ایز ویل ان لائف. مطلب وہ بھی ایک جستجو ہوتی ہے اور وہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں یار خود کو خوش رکھنا ہے. تو جب آپ خود کو خوش رکھتے ہیں, سیلف لو دیتے ہیں, تو آئی تھنک وہ پھر دوسروں میں ویسے ہی انرجی جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مگر دیکھیں خوبصورتی اور اداؤں سے تو آپ بلیسڈ ہیں. نہیں وہ مجھے نہیں پتا, بٹ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اندر سے خوبصورتی ضروری ہے, ورنہ آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت لوگ ہوں گے, منہ کھولیں گے آپ کہیں گے یار اب منہ مت کھولنا تم چپ ہی ٹھیک ہو, اور 2 دن بعد آپ کو اس کی خوبصورتی بھی نہیں اچھی لگی, آپ کہیں گے آپ میرے سامنے سے چلے جائیں. سو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو اے پازیٹیو انرجی. تو وہ میں تمہاری آنکھوں میں خوبصورت اس لیے, ایک تو تمہیں مجھ سے پیار ہے کیونکہ یو لائک سسٹر ٹو می, اینڈ سیکنڈلی کہ تم میری انرجی فیل کرتی ہو وچ از پازیٹیو, اینڈ یو آر پازیٹیو ایز ویل, اس لیے. ہاں پازیٹیو سے بھی فرق پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج تو ہم شو میں بیٹھے بتائیں. ہاں نا دیکھیں ویسے آف کیمرہ ہم دوست ہیں, مگر یہاں آپ مائرہ ہیں. نہیں یار دیکھیں میں I swear when I was like you know I've never read about you on internet, so when I chose you as my guest I started reading about what you've done and everything so far, so I was like oh my god I am going to interview Myra Khan because آپ نے کبھی ایسے احساس نہیں ہونے دیا, because دیکھیں نیچر بھی ہوتا ہے نا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا فیم سر پہ چڑھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمبل ہی رہتے ہیں, تو آپ نے کبھی ایسے فیل نہیں ہونے دیا؟ ہاں آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بینش کہ ایک تو یو آلسو فرام دا سیم بزنس دیٹ آئی ایم ان, اینڈ سیکنڈلی یو مائی بیسٹ فرینڈ, اینڈ تھرڈلی سر پہ چڑھا کے کرنا بھی کیا ہے فیم کو, بچپن سے دیکھا, بیکاز بچپن سے ہی کام کیا, تو وہ مجھے لگتا ہے کام ہے. اچھا کام کب سے کیا؟ آئی تھنک آئی واز 4.5 years old. 4.5 یا 5 سال کی تھی جب پہلا پروجیکٹ کیا تھا, اور پہلا میں نے آٹوگراف ہی دیا تھا جب میں 5 سال کی بچی نے کیا کیا تھا؟ آئی ڈیڈ اے پلے فار پی ٹی وی. اور کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پلے کرے گی؟ میں نے خود نے. ہاں اسٹوڈیو میں 5 سال کی بچی نے ڈیسائیڈ کیا تھا. میری اماں ڈرامے کے لیے گئی ہوئی تھی, بیکاز شی یوز ٹو ایکٹ آن اینڈ آف, تو ایسے میں پھر سلیکٹ ہو گئی تھی. اینڈ ظہیر خان صاحب عدنان صدیقی کے جو سسر ہیں,
तो ही वाज अ प्रोड्यूसर, तो उन्होंने कहा नहीं ये 5 साल का जो छोटू सा ये फिर रहा है ना ये करेगा. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्टिंग. तो मेरे लिए वो नहीं है कि मैंने प्रोजेक्ट किया है करना पड़ेगा. कि ये It's part of your life. it was always part of me, acting and drama and this was part of me. तो वो आपने VJ भी बनाया है, आपने मॉडल भी किया है, आपने एक्टिंग भी किया है. Yes. Which one of those jobs is your favorite or you love doing? दिल से. अच्छा, अभी ना थोड़े अर्से पहले मैं वासे के शो पे थी, तो वहाँ पे मुझसे सवाल हुआ, मैंने ये कहा कि मुझे ना एंकरिंग से थोड़ा सा नर्वसनेस होती है कि यार मैं कैसे हैंडल करूँगी शो को, बिकॉज मॉर्निंग शो भी किया है डॉन का 1 साल. तो क्योंकि मैं थोड़ी ना इंट्रोवर्ट टाइप थी बचपन में, तो वो आपको स्क्रिप्ट मिल गया, आपने डायलॉग्स याद किए, आपने बोल दिया, उसमें अपनी सारी आपने मास्टरी दिखा दी. फिर जब अपनी पर्सनालिटी शाइन आउट करने के लिए आती थी ना, तो मुझसे वो वीजिंग भी कर लेती थी, स्क्रिप्ट होता था इंडस विजन के शोज़. लेकिन जब आया मेरे सर पे डॉन का मॉर्निंग शो, मस्त मॉर्निंग विद मायरा खान, और मैंने कहा नो वे, अब ये मुझे क्या करना है, लाइक यू नो लाइक आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग, दिस इज माय शो. और उस ज़माने में शाइस्ता लोधी was doing it, Maya Khan big was doing fishes. it, they were doing it, and then अंदर से मैं एक आ रही हूँ, तो फिर मुझे ना बहुत प्रेशर फील हो गया. उस प्रेशर के बाद, क्योंकि वो प्रेशर मैं अच्छा ले नहीं सकी, एंड देन आई सेड नो आई एम सो सॉरी, आई हैव टू लीव द शो बिकॉज मैं नहीं कर पाऊंगी. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जो हूँ वो होस्टिंग के लिए नहीं बनी. फिर अब जाके आपको भी पता है, थोड़ी हिम्मत पकड़ रही हूँ, मुझे पता है वो अंदर की नर्वसनेस है जो मुझे नहीं करने दे रही शो. पर आई थिंक एक्टिंग से भी थोड़ी किनारा कशी की हुई है. हाँ, क्यों की? मैंने क्या कोई स्क्रीन से नाराजगी थोड़ी है तो मुझे बता ऐसे- दे. नहीं यार, मुझे ऐसे लगता है कि जब तक 100% मैं किसी चीज़ को नहीं दे पाती ना, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए. हाँ, ये तो मैंने इनके बारे में बड़ी सुनी हुई है बात कि जो भी किरदार करती हैं उसको अपना 100% देती हैं. हाँ, नहीं, वरना नहीं करो यार. आप सेट पे जाके अजीब हो रहे हो, दिल नहीं लग रहा, 10 बजे सुबह उठा बट नहीं सवाल जा मेरा रहा. अपनी जगह खड़ा है. मॉडलिंग, एक्टिंग और वीजिंग, किसको कुछ सबसे भी नहीं. ज्यादा? नहीं. अच्छा, वैसे ओवरऑल तीनों में क्या से पसंद है सबसे क्या ज्यादा? चीज सबसे ज्यादा पसंद है करना? मॉडलिंग मुझसे नहीं होती बिकॉज मुझे सांस रोक के तस्वीर खिंचवानी पड़ती है. वो भी अब मैं जाके थोड़ा सांस ले रही हूँ. होस्टिंग इंशाल्लाह करूँगी. आई थिंक एक्टिंग में भी, आई लव एक्टिंग. सी एक्टिंग Yeah. निकलवा लिया फैंस हमने आपके लिए हाँ. जवाब. इन्हें एक्टिंग करना पसंद है. हाँ, और बहुत इंटेंस रोल किए हैं ज़िंदगी में, तो अभी उससे भी इसलिए मैंने 1-2 साल से ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज मेरे ना वो सवार हो जाते हैं चीज़ें. तो वो मैं बहुत सारे डायरेक्टर से पूछती, मैं कहती यार वाई मी फॉर दिस रोल एंड दिस रोल. उन्होंने कहा जब भी मुश्किल और बदनुमा रोल्स आते हैं तो मायरा याद आती अच्छा, है. आपने जितने किरदार अदा किए उसमें सबसे फेवरेट किरदार कौन सा था? फेवरेट किरदार, आई थिंक आई डिड शबाना, रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, जमाल शाह साहब की फिल्म. उसमें शबाना वाज अ रियल लाइफ कैरेक्टर एंड इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज. अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. एंड तो वो शबाना का कैरेक्टर, बिकॉज शी वेंट थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ. शी वाज अ सिंगर, पठान सिंगर, एंड I played her character and she was killed by terrorists. तो वो कैरेक्टर हावी हो गया था मेरे ऊपर, बहुत मुश्किल था. और फिर मुझे एहसास हुआ कि औरतों के साथ स्पेशली जो होता है, तो इट वाज अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट कैरेक्टर. कैसा एक्सपीरियंस रहा जमाल शाह के साथ काम करना? वो भी हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा नाम है. यस, हुनर कदा उनका हाँ, I इंस्टीट्यूट. know. आई थिंक जमाल साहब के साथ इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. उससे पहले मैंने एक सीरियल किया था जिसमें मैं और अमानत अली वी वर डूइंग द लीड कैरेक्टर्स एंड अतीका ओडू एंड जमाल शाह वर प्लेइंग माय पेरेंट्स. तो उनसे ना मेरी एक वो हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी एज अ फादर, बिकॉज ही वाज प्लेइंग माय फादर. तो उसके बाद ही डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड दिस फिल्म. तो मज़ा आया था. मज़ा आया था. अच्छा, फिल्म्स और ड्रामे में क्या चीज़ ऐसी है जो ड्रामा में आप मिस करती हैं या इंजॉय करती हैं, या क्या चीज़ ऐसी है जो फिल्म करते हुए आपको फील हुई और वो ड्रामा करते हुए फील नहीं होती? दोनों, मैं एक बात बताऊं, बोथ मीडियम्स आर Definitely different. entirely different, right? Definitely different, yeah. Film is something which is like मतलब out of this world kind of experience, because आप बड़े पर्दे के लिए काम कर रहे होते हो और उसके थोड़े being an actor उसकी थोड़ी मेहनत भी अलग होती है. ड्रामे में तो वो 12 घंटे 10 घंटे आप एक सेट पे
15 सीन कर रहे होते हो, वो कैरेक्टर आप पे इतना ज़्यादा तारी हो जाता है, जब फिल्म के सेट पे आप जा रहे होते हो तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है, बिकॉज डायलॉग्स कम होते हैं और उसका मेथड ऑफ एक्टिंग इज़ डिफरेंट. सो आई थिंक बोथ मीडियम्स आर डिफरेंट, बट हमारे यहाँ बेचारी फिल्म्स अब इतनी ठुस सी होके रह गई हैं कि अफसोस होता है. पर आपने तो इतनी ठोस फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी कैरेक्टर वाली फिल्म्स दी. जैसे चंबेली में आपका किरदार था, द वन यू वर टॉकिंग अबाउट अभी जो आपने जमाल शाह के साथ ली. आई मीन हाउ डिड यू फाइंड such characters in such dead film industry? Did you like struggle for it, or you waited, or it was pure luck, or you were what was that? See, because I was always a part of this industry, and Chambeli was my first film, which was actually released in 2013. It was a first digital उसमें भी film. काफी challenging character था आपका. बहुत ज़्यादा था. I think आपका face burn जलता था है and everything. Yes. Because शहजाद नवाज के साथ शहजाद नवाज ने एक फिल्म बनाई थी बोतल गली के नाम से, और उसमें you were also there. उसकी स्टाइलिस्ट मैं थी. हाँ, बोतल गली की you were stylist, और उसमें कौन एक्टर नहीं था? हाँ, उसमें पूरी दुनिया के एक्टर थे. उसमें हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, बरकत सिद्दीकी भी बरकत सिद्दीकी से लेके सारे सिद्दीकी, साइमा कुरैशी. I think a lot everybody of was models there. and everybody was there. Everybody was there. So Shehzad Nawaz was, I don't know, he was always a fan, that's what he said, of my acting and everything. And then when he was producing this film, अच्छा बड़ा मज़ा आया. हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं ऑडिशंस का, एंड क्योंकि मेरा क्या ऑडिशन होना है, बचपन से काम कर रही थी, घर की खेती थी. एंड व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर दिस फिल्म चंबेली, दे सेड ऑडिशन होगा. तो मैंने कहा क्या मज़ेदार बात है. मैंने ये नहीं कहा कि व्हाई ऑडिशन दिस एंड दैट. आई वाज लाइक ओके ऑडिशन दूंगी. सो आई वाज कॉल्ड टू लाहौर. लाहौर वाज द बेस. हमजा अली अब्बासी, अभी ये मौला जट was in talks, तो वो एक बिलाल अशारी, और इसमें तो हमजा अली अब्बासी was auditioned for my साथ वाला कैरेक्टर. हमजा अली अब्बासी was auditioned for that. I was auditioned for this. Then it was वो लंबी सी एक मॉडल है, वो सब एंड टाइम पे हमजा कर नहीं सका. आई वॉज ऑडिशनड, मेरा जो है वो मैं पास हो गई ऑडिशन में. और उसमें डायलॉग्स बड़े मुश्किल थे. एहतशाम ने लिखे थे उसके डायलॉग्स कुछ इस तरह के. एंड जब ऑडिशन करके जब मैं पास हुई उस कैरेक्टर के लिए, तो मुझे लगा यार एक अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है. जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, ऑब्वियसली देयर बिग एक्टर्स, बट फॉर अ सर्टेन रोल यू आर ऑलवेज ऑडिशनड. But do you think how important it is to audition an actor, how no matter how big that name is? Yeah. But do you feel that there has to be an audition for if you know the project is deep and you know Yeah. the character is required a different kind of acting skills or something like that I think it depends on entirely on the team. on the team? Like captain of the ship, the director, producer. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपने काम, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ टीम ने काम नहीं किया होता, डायरेक्टर ने काम नहीं किया होता. सो ऑब्वियसली वो कहते हैं यार उसके स्किल्स, उसका स्किल सेट नहीं मालूम होता डायरेक्टर को. तो प्रॉब्ली हॉलीवुड इज सच अ बिग इंडस्ट्री कि वो कहते हैं कि यार मैंने बीनेश के साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने XYZ के साथ काम कर लिया, तो इसका स्किल सेट क्या है ये मालूम. दैट्स व्हाट आई थिंक. You think? कि इसको बुलाएंगे, इसके मैनरिज्म क्या है, इसका स्किल सेट क्या है, डायलॉग में कहाँ ब्रेक है, किस तरह बोलता है, इसको 10 बार हम कट कराएंगे, 10 बार कट करेगा, कहाँ तक बर्दाश्त है. यू नो आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिशन. हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है बीनेश कि हर कोई हर किसी के साथ काम कर चुका है. Yeah. तो एवरीबडी नोज किसका क्या स्किल सेट है. ये तो बिल्कुल So आपने they- सही yeah, बात they की. just- अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्टिंग की, वीजिंग की, मॉडलिंग की, कभी दिल किया कुछ प्रोड्यूस करने को? हाँ बिल्कुल. प्रोड्यूस किया? हाँ, पिज्जाज बनाए, केक बेक किए. नहीं यार, प्रोड्यूस करने का पता है क्या, बिकॉज आई हैव सीन प्रोड्यूसर्स अराउंड में. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार चलो टेलीफिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं एवरीथिंग. बट आई थिंक मैंने कभी ऐसे कान में सुना था कि मायरा कुछ टेलीफिल्म बना रही हैं. हाँ, लेकिन हालात जो है ना, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ पार्ट ऑफ द गेम, तब हो सकता है. बेचने भी तो जाना है ना, तो किसको बेचोगे. लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. यू हैव योर ओन वेब एंड यू हैव योर ओन यूट्यूब
But even for that, you have to have a lot of money that once you put XYZ amount of money into this and then you sit for the views and for this and for that. So yeah, production आजकल के ज़माने में is not a easy cake bake कि आप कर सको, you know, अपनी उसके लिए आप कर लो, शौक के लिए जो मैं करूँगी podcast. But otherwise, I don't think you can make money out of it unless and until you're a big fish. अच्छा ओके, ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल बातें. अब आप मुझे बताएं कि आपकी बातें हॉबीज तो क्या आपको है? सारी पता है. नहीं पर्सनल बात है तो लोगों वो के लिए. नहीं, वो मैं इधर कुछ नहीं बता रही. मुझे ये बताएं कि हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज क्या है? यार, you know I love gymming. I love taking care of myself. वो तो हम आपके इंस्टाग्राम से देख के बता ही देते हैं. सुबह जिम जा रही होती हैं, शाम में जिम जा रही होती हैं, कभी जिम से आते हुए स्टोरी बन रही होती है. आपकी ये जिम से वापसी और आने जाने वाली स्टोरीज जिसमें आप लोगों से गुफ्तगू कर रही होती हैं वो काफ़ी हिट हैं. अब जिम हो गया, योगा हो गया, taking care of myself in any way possible. That's my hobby. To just So be were healthy. you always very fitness freak kind of a Always. person? Always. Always. ये नई बात नहीं है. ये नई बात नहीं, ये नई बात नहीं है. I ये think अभी इंस्टाग्राम की वजह से सबको नहीं अभी पता चला है. नहीं, जब हम जिम जाया करते थे, हमारे घर में जिम होता था. ओहो. तो वो घर में जिम होता था when I was in my teens. तो उस वक्त से आदत है मुझे. ये मैं जब लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ भाई ये लाइफस्टाइल है. ये आप नहीं कह सकते 6 महीने में मेरा वजन कम नहीं हुआ. But do you really think कि इस लाइफस्टाइल को चलाना, अडॉप्ट करना या ये कोई आसान काम है? सारा मेंटल गेम है. सारा mental आसान या मुश्किल कुछ भी नहीं होता है. आपके दिमाग में ब्लॉक होता है. आप दिमाग में कहते हो यार जिम जाना है, ये तो आपकी थॉट है ना. उस थॉट प्रोसेस को चेंज करो. यार जिम जाना है. You know what I mean? Make it more exciting for Yeah, you. for yourself. तो ताकि आपको मुसीबत ना लगे ना. अच्छा, आपके कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, तो being the only child, perks and वो क्या थे आपके, like you ईद know? पे बड़ा अफसोस होता है. सुनो यहाँ पे भाई बहन है, फिर भी ईद पे कोई नहीं होता, तो इसलिए इट्स ओके. हाँ, उसके अलावा कोई ऐसी चीज है तो बताओ ना. अच्छा किया बिनेश. आई लव हाउ यू आस्किंग मी क्वेश्चंस बिकॉज मैं मैं नहीं कहूँगी, तुम्हारे इस शो के जरिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. तुम तो कहती हो तुम अकेली हो, छोटा भाई तुम्हारा लंदन में कैसे है, तुम तो कहती हो यू आर द ओनली चाइल्ड, फिर बड़ी बहन तुम्हारी कनाडा में कैसे है, तुम तो कहती हो यू आर द ओनली चाइल्ड, फिर तुम्हारा बड़ा भाई अबू धाबी में क्या कर रहा है. हाँ, ये सब क्या कंफ्यूजन फैला के रखी है मायरा खान, है ना. लोग कहते हैं ये तो उसका सगा भाई कैसे हो सकता है, ये तो कहती है इकलौती है. तो आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो छोटा भाई लंदन में कहती हूँ मेरी खाला का बेटा है. ओके. जो मेरे साथ तकरीबन उसने अपना सारी ज़िंदगी गुजारी बिफोर ही वेंट टू दुबई एंड लंदन. बड़े बहन भाई मेरे, मैं कहना नहीं चाहती थे मैं स्टेप सिबलिंग्स, पर स्टेप है तो नहीं ना, एक ही बाप की औलाद है. तो उनसे ज़रा हाफ सिबलिंग्स, हाफ या है ना. ब्लड तो वही है, Blood मेरे तो बड़े वही है, बहन भाई हैं वो. बट हमारी अम्मा डिफरेंट है. और बड़ी ड्रामेटिक बात है, वैसे मैंने किसी को बताई नहीं है कभी, बट तुम्हारे शो में चलो कोई बात नहीं, लोग आपको जानना चाहते हैं इसलिए तो वो शो देखेंगे, है ना. हाँ. एंड हुआ ये कि बड़ी हो चुकी थी मैं, इंडस विजन में थी मैं. पता तो था मेरे भाई बहन है, पर मिली नहीं थी कभी उन दोनों से. ओह, तो ये काफी लेटर मिलन हुआ ये है. लेटर ऑन इन माय लाइफ मेरा मिलन हुआ है मेरी बहन भाई से. What was your age? I was in Indus. I was in my late teens. 19 की होंगी मैं, and I was married. And one fine day I got a call from my sister के मैंने कहा हाँ मुझे पता है मेरी बहन है पर कभी मिले नहीं आप. And then she just flew to Karachi from Dubai and then we met and till date. You guys are bond good है, friends. good sister. Sisters, अब वो बड़ा hurt होती है जब मैं ना किसी भी इंटरव्यू में भी ताबिश के गई हुई थी तो मैंने कहा आई एम दी ओनली चाइल्ड. जब मैं घर पहुंची मैंने कहा डैड मैंने क्यों बोल दिया. फिर मुझे कहेगी हाँ तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो आदत है ना बोलने की कि हाँ इकलौती हूँ. क्योंकि आपने एक अरसा जिंदगी का जो है वो अकेला गुजारा, तो जाहिर है कि वो एक चीज आपके अंदर बैठ जाती है. यस. और फिर ऑब्वियसली हाँ. तो अम्मी से कैसी बॉन्डिंग है? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड इज माय मम. लाइक एवरीथिंग. लाइक कुछ पर्दा होता है ना लोगों का अपनी माँ से. कुछ जब दो ही लोग रह रहे होंगे तो पर्दा क्या करेंगे? कोई लिहाज तो होता है. लाइक मेरा कोई लिहाज नहीं है उस सेंस में अपनी माँ से. मतलब लेकिन वो भी तो अच्छी है ना, वो भी बड़ा फ्रेंडली टाइप है, मतलब वो ऐसे कोई माँ टाइप नहीं है. माँ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. अगर मुझे लगता है कि मेरी माँ इतनी फ्रेंडली या
میرے ساتھ اتنی فلیکسیبل نہ ہوتی نا تو آج میں جو ہوں جہاں ہوں زندگی مشکل ہوتی وہ میں نہ کر پاتی. کیونکہ آج جہاں میں کھڑی ہوں میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی سچویشن میں ہوں اپنی وجہ سے ہوں آج, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بی دس, اور کوئی ریگریٹ نہیں ہے. تو اس میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یو نو. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ اب ہم اس ایج میں ہیں جہاں ہم بھی مائیں ہیں اور اولادیں ہیں, کہ ڈونٹ بی اسٹرکٹ ود یور چلڈرن, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ آج بھی میں دیکھتی ہوں مائیں ویسی ہیں جیسے ان کی مائیں ان کے ساتھ تھی, جو کہ اسٹرکٹ تھی کیونکہ ان کی مائیں ان کے ساتھ ویسے تھی. تو میرے خیال میں اپنی اولاد سے بدلہ لینا تو فضول ہے, اور وہ ان نوئنگلی سب کانشیسلی آپ اپنی اولاد سے بدلہ لے رہے ہوتے اپنے ماں باپ کا. سو آئی تھنک one shouldn't do that. You know, you have to be humble and careful and very loving to your children. تو ہی وہ فلرش کریں گے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ لائف میں کوئی ایسی ٹائم یا وقت یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا مومنٹ جہاں آپ کو لگا ہو کہ کیونکہ 5 سال سے ایکٹنگ کی تھی, کبھی تو ایسا لگا ہوگا کہ نہیں میں پائلٹ ہوتی یا میں کچھ اور ہوتی, کوئی ایسا مومنٹ کہ یار میں کیا کر رہی ہوں, جس میں نے کہا تھا نہیں, I swear this came randomly. Really? کبھی تو ایسا لگا ہوگا نا, کیونکہ 5 سال کی عمر میں جیسے میں ہوں, میری بڑی سٹیجز آئی ہیں کہ اچھا اس ٹائم پہ مجھے لگا اچھا یہ میں یہ بھی کر لیتی تو زیادہ ہی بہتر تھا, یہ کچھ اور کر لیتی, you know. You wanted to become a pilot? No, I never wanted Why to become a pilot. Why did you ask me this? Because I always wanted to become a pilot. Oh. Yeah, seriously, like my father was an army, na? My grandfather was an army, and my grandfather wanted my father to become a pilot. ویسے اگر آپ پائلٹ بنتی تو بہت ہے نا, ہاٹ ہوتی نا. میں بتاتی ہوں کیوں ہاٹ تو آپ ابھی بھی ہیں, یونیفارم اینڈ ہاٹ تو آپ ابھی بھی ہیں, لیکن آپ اچھا پائلٹ ہوتی. پوچھے کیسے؟ کیونکہ آپ اڑتی تو تتلی کی طرح بہت زیادہ اچھا ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اڑاتی تو آپ کیسا اڑاتی, لوگ اڑا ہی دیتی. ہاں ٹھیک ہے. نہیں ایکچولی پتہ ہے کیا, لگی تو نہیں. اینی وے, تو دادا چاہتے تھے ابا ایئر فورس جوائن کریں, اور ابا کو ایئر فورس جوائن کرا دی. And then my khala actually died in a plane crash before I was born. When did this happen? This was some Taif ka plane crash hua tha in late 70s or something. So my mom got scared of that. To meri puri family na trauma mein thi. And then when I was born and I wanted to be in the plane all the time, so my mother said, no beta, I have lost a sister. I don't want to lose you. And then my father was like, ho nahi sakta because you're the only child. تو مجھے بننے نہیں دیا پائلٹ, ورنہ میں پائلٹ ہوتی. کل رات کو ہی بول رہی تھی ہمارا ڈاکٹر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, بیکاز آئی وانٹڈ ٹو سرو پیپل. سنیں لیکن آپ ٹریول تو پھر بھی کرتی ہیں, پلین میں تو ہر وقت ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, مطلب ایک پلین سے اترتی ہیں, تھوڑے دن ادھر کراچی رہتی ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد, یہ کیا ہابی ہے یا نہیں یار, آئی وانٹ ٹو سی یا پلین میں بیٹھنے کا بہانہ؟ نہیں, آئی وانٹ ٹو سی دا ورلڈ بینو. آئی تھنک مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز آپ کو سکھاتی ہے نا وہ ٹریولنگ سکھاتی ہے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو یا آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے نا, تو یار دنیا گھوم لو, گوروں کو دیکھ لو. مطلب پورے مہینے کام کریں گے یا پورے ہفتے کریں گے, ویکینڈ پہ وہ سارا پیسہ اڑا دیں گے. اور جہاں آپ جاتے ہو گورا بیک پیک ڈالا ہوتا ہے, پھر رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ جب میں بالکل اتنی سی تھی نا, تو ابا نا بٹھا کے, یاد ہے ان کے پاس نا لال والی مرسیڈیز ہوتی تھی بڑی والی نا, تو اس میں آگے بہت جگہ ہوتی ہے. تو امی بتاتی ہیں آگے تمہیں ڈال کے یوں, تو ہم نا کراچی سے ایبٹ آباد بائی روڈ جاتے تھے. تو کیونکہ وہ آرمی میں بھی تھے, پھر پوسٹنگز, تو میں نے بہت اس طرح ٹریول کیا بائی روڈ. تو میں سمجھ لو پیدائی گاڑی میں ہوئی ہوں. تو اتنا ٹریول کیا ہے میں نے بچپن سے, کہان ناران سے وہاں تک, اور وہ اور گلیشیئرز میں تو فلاں کہ میرا نا امی کہتی تھی کہ جب تم سلاتے تھے نا تمہیں, تو گاڑی میں چکر دلاتے تھے. تو پھر میں سو جاتی تھی گاڑی کے چکر میں, پھر وہ مجھے لا کے بیڈ پہ ڈالتے تھے. تو سوچو مہینوں کا بچہ یوں گاڑی میں چکر کھلا کے اس کو ڈال رہے. میں وہ بچہ نہیں تھی بچپن سے کہ وہ جو بہت یہ نہیں, گاڑی میں چکر کھلاؤ گے مہینوں کے بچے کو تو وہ سوئے گا, ورنہ وہ رو رہا ہے. وہ ہلچل پرسنالٹی میں بچپن سے ہی موجود ہے. وہ آ گئی, اور پھر مجھے یہ ڈسٹربنس ہو گئی. اب میں نا تھوڑے دن پہلے کوئی, تو کہاں شفٹ ہو گئی ہو, لنڈن یا نیو یارک یا, میں نے کہا بھائی کراچی میں رہتی ہوں. کیونکہ آپ سارا وقت گھومتی رہتی ہیں. تو پھر میں انسٹاگرام پہ اب نہیں. اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے مائرا کہ میں 2 دن پہلے ملتی ہوں ہیئر اپوائنٹمنٹ پہ, اور 2 دن کے بعد یہ عورت کہیں اور انسٹاگرام کی اسٹوری بنا رہی ہوتی ہے, اور میں اس کو میسج کر کے پوچھ رہی ہوں, آئی تھنک یو آر ناٹ ان دا سٹی. یس آئی ایم سٹنگ ہیئر. بہت اسپونٹینیس ٹریولر ہے. ہاں اسپونٹینیس ٹریولر ہوں میں, بہت اسپونٹینیس. صبح سے میں ابھی اپنے ٹکٹ کا کر رہی تھی. جب سے میں دوست بنی ہوں نا, تو مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ارے چلی گئی,
हाँ हाँ, और लोग मुझे कहते हैं यार पता है आपको ना उस प्रोजेक्ट के लिए, मैंने कहा उसके लिए किसको किया था, आपको किया था, आप थी नहीं, मैंने कहा तो बता देते, हमें क्या पता था। तो वो थोड़ा अफसोस भी होता है। फिर मैं कहती हूँ यार अफसोस की क्या जरूरत है, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने एक रियलिटी शो किया था तमाशा जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ मज़े की इंटरेस्टिंग कोई कहानी तमाशा की, या कोई ऐसी चीज़ जो आप वहाँ से लेके निकली? सारी कहानियां तो सबके सामने, दांत तक तो तोड़वा लिया था। गुस्सा आया था? हाँ यार बेसिकली किसने तोड़ा था दांत? मैंने खुद ही तोड़ा था। खुद ही क्यों तोड़ा था? क्योंकि हुमैरा मेरे मुंह में उंगली घुसाई, तो मैंने कहा मैं इसको काट लेती हूँ, मेरा विनियर ही टूट के गिर गया। बाय द वे मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे आते हैं दांत उग गया, भाई दांत उगता नहीं है, अभी वो फैसिलिटी नहीं आई जापान वाली कि हड्डी उग जाए, नकली है, तो वो लग गए। बट यार पता है क्या, मीनश बहुत कम लोग हैं, लाइक आई थिंक नाउ आई एम वन ऑफ 1% पीपल इन द वर्ल्ड जिसने रियलिटी शो किया है। Oh yes, reality ये show सोचो। is not an easy task. 24 घंटे कैमरे के सामने। जब मुझे ऑफर हुआ मैंने कहा ब्रो मैं कर रही हूँ, रजा मुस्फी ने मुझे कहा था, आई वाज लाइक मैं करूँगी, कहाँ आना है, कब आना है, एंड क्योंकि टीवी देखते नहीं है तो अम्मी ने कहा नहीं बेटा अदनान सिद्दीकी वो कर रहा है और मत ही जाओ, तुम तो मत ही जाओ। मैंने कहा अम्मी ने "मामा, क्यों मना किया? अम्मी को मेरा पता है ना एक जगह टिक नहीं सकती, उन्होंने कहा तीसरे दिन शो छोड़ के वापस आ आ जाएगी। जाएगी। और यही हुआ जब मुझे आया, मैंने कहा रजा कितने हफ्ते हैं, तो 6 हफ्ते 8 हफ्ते का था, उस वक्त इतना लंबा नहीं था। आई वाज लाइक 1 हफ्ता रखो मुझे, और मुझे कहा नहीं मिनिमम बिकॉज इट्स यू वी हैव टू हैव यू फॉर 2 वीक्स। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट 2 हफ्ते का करके प्लीज मुझे निकाल देना, देन आई हैव वर्क एंड एवरीथिंग। ही सेड ओके, पर आखिर तक आई स्टेड इनसाइड। So did you like enjoyed staying because ये चीज़ तो पहले से तय थी? हाँ। फिर क्या अंदर आके मज़ा आने लगा, फिर क्या गेम का हिस्सा बन गए, या क्या ऐसी वजह थी that you stayed? अगर longer? आज मुझसे पूछोगी ना, और क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो आई थिंक आई वुड प्ले द गेम डिफरेंटली। अच्छा। ठीक है, पर आई वॉज जस्ट बीइंग मी। और क्योंकि मुझे ना लाइट से मसला है, मुझे ना माइग्रेन है, और मैं बहुत सेंसिटिव बच्चा हूँ बचपन से, मैं कोई बहुत रफ एंड टफ नहीं हूँ, वो तो अब मैंने अपने आप को बनाया है। एंड तो मुझे ना स्टूडियो की लाइट्स और लाइट से ना आधे सर में दर्द होता है। तो उमर क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची बोलता था, हुमैरा की आवाज़ भी चुभती थी, तो मैं चिढ़ने शुरू हो गई। ये तो शो में नहीं दिखाया, लेकिन मुझे ना वो लगते थे पेन किलर्स। ओह, हाँ, मुझे पेन किलर्स लगते थे, डॉक्टर आता था हर दूसरे दिन, मुझे पेन किलर्स लगते थे, और फिर बहुत सारे गेम्स मैंने छोड़े भी हैं, और मुझे सुला देते थे। और वहाँ सर्टन प्लेस की ना लाइट ऑफ कर देते थे, और मैं आई मास्क पहन के ना 15-20 मिनट आधे घंटे सो जाती थी। मैं शो में नहीं होती थी, लोगों को फील नहीं हुआ क्योंकि एडिटेड वर्जन आपको 1 घंटे का दिखाते हैं, 24 घंटे का नहीं दिखाते। तो जब मैं उठती थी ना, मुझे खामोशी चाहिए होती थी। अब एक जगह मेरी और उमर आलम की लड़ाई हो रही है, जहाँ वो मुझे कह रहा है, जब मैंने उसको कहा है कि मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं आता लोगों में रहना, विच इज़ अ फैक्ट, तो मेरे घर आई हो, कितनी खामोशी होती है। हाँ, अम्मा अपने कमरे में और कोई है ही नहीं नौकर चाकरों के अलावा, राइट। एंड तो मुझे कहता इतनी अकलौती हो और इतना वो, अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो घर पे रहती ना, क्यों आई हो इसमें। तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी इतने सारे लोगों में रहना क्या होता है। तो फिर अब उनको पता होता था यार कि माइग्रेन है, पर शो तो शो है, वो तो चलना है, शो मस्ट गो ऑन। इसलिए मेरी ना एंड में जाके चिड़चिड़ाहट और वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। किससे सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई? आई थिंक उमर भी उस दिन यही कहता कि किसी से नहीं हुई सिवाय तुम्हारी मेरी लड़ाई। मैंने कहा चलो कहीं तो तुमने कुछ स्पाइस दिया मुझे। पर हुमैरा से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, अच्छा, जिसमें मेरा दांत टूट गया था। एंड आई थिंक अच्छा ही हुआ कि मुझे निकाल दिया गया। रात के कोई 2:30-3 बजे मैं घर आई, एंड माई मदर वॉज शॉक्ड बिकॉज जो शो आप देखते हो वो एडिट होके 1 से 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद ऑन एयर होता है ना। तो मेरे लिए मैं 4 बजे सुबह अपने ससुराल से निकल के घर पे खड़ी हूँ, मेरी अम्मा ने ऊपर से देखा बेटा तुम, क्योंकि अभी तो देखिए कि घर में है और सही। आई वाज लाइक मुझे निकाल दिया। अम्मी कह रही क्या हो गया, घर आई हो, तब क्यों रो रही हो। एंड जब मुझे अदनान सिद्दीकी ने निकाला, बिकॉज अदनान को, फिर अदनान ने मुझे कहा कि मायरा सुबह से तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब बता रही हूँ मैं, इससे पहले मैंने बताया नहीं, आई हैव टू शेयर दिस, इट्स योर शो। तो बोला कि तुम सुबह से बहुत गुस्से में थी, और कल रात से अभी तक पूरी टीम सोई नहीं है कि कहीं तुम कुछ कर ना दो,
Oh my God. So the whole ARY, yeah. So the whole ARY team, देख रहे होंगे, it's obviously, I'm sorry, but they said the whole ARY team was like this because of you. कि तुम कुछ, मैंने कहा यार इतनी dangerous लग रही थी मैं. फिर लिस्ट मुझे बताई कि इतनी तुमने गालियां दी हैं और ये हमने ऑनर नहीं की है. मैंने कहा मैंने तो गालियां नहीं दी. गुस्सा था. हाँ वो जाहिर है बिकॉज आपको वो एक बंद जगह पर हैं. नहीं यार बहन भाई नहीं थे ना, बचपन से नहीं थे ना यार, कोई छेड़ दे या कुछ. इतनी छेड़छाड़, ऊपर से मेरी दोस्त पठान. हाँ और इतनी छेड़छाड़ कि जो देखो यहाँ से ये कर रहा है, वहां से ये कर रहा I है. think they do it deliberately also. नहीं यार दूसरे भी तंग आए हुए ना डेफिनेटली. क्या करेंगे वो बेचारे, खुद भी बंद है. टाइम का पता नहीं होता था, माइक्रोवेव में हम टाइम देखते थे, है अजान के उससे पता चल जाता था कि क्या टाइम है. आई थिंक अब मुझे दोबारा चांस मिले ना, मैं जरूर करूंगी. तो क्या अब कैसे गेम खेलोगी? मतलब क्या क्या ऐसी चीजें जो करोगी और क्या ऐसी चीजें जो नहीं करोगी? डूज एंड डोंट्स. हाँ. मेरे ख्याल में कि अपने एंगर पे कंट्रोल करना मुझे उस शो के बाद आ गया. ओए होए. ठीक है, मतलब डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल जिंदगी में. आपकी जिंदगी बहुत प्रेशियस है. कुछ भी पर्सनल मत लो, अपनी सेहत खराब मत करो. ये सीखा है मैंने तमाशा से. वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज. नेवर टेक एनीथिंग पर्सनल. अम्मा अब्बा की बात हो, दोस्त की बात हो, भाई भाई वो गुस्से में होंगे, उन्होंने ये बात की है, ये उनका गुस्सा था, ये तुम्हारे लिए नहीं था. सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल. चीख ड्रामा याद है? मुझे नहीं होगा, किसको होगा? तो फिर मुझे बताएं कि चीख ड्रामा में आपका जो कैरेक्टर इवॉल्व हुआ था वो कैसे हुआ था? इवॉल्व कहाँ हुआ था, काट दिया गया था. क्या वजह थी? क्या वजह थी? आई हैव नो आइडिया. अभी मैंने ये वासे के शो में भी बात की थी, तो वासे जो है शिट, तो वो कहते कौन सा ड्रामा था, कौन सा ड्रामा था. तो मैंने तो ड्रामा ही सामने रख दिया भाई. मैंने तो सवाल ऐसे रखा. आई मुझे लग रहा है काट दिया गया था बिकॉज मुझसे लिए ज़्यादा दिन थे. और एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आपकी तलाक करा रहे हैं और थैंक यू बाय बाय. आई वाज लाइक ओके फाइन. अच्छा फाइन, मुझे तो वैसे भी शौक नहीं है ड्रामे करने का भाई. चलें. Yeah. It was lovely talking to That's you. it? Is that it? Okay, it was lovely talking to you too. कुछ और पूछना है क्या? नहीं. मुझे ये बताओ. सीरियस क्यों हो गई हो? हमने क्या नहीं, हमने you covered everything. हमने काम की तो सारी बातें कर ली लेकिन हमें पर्सनल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं लिया. सब कर लिया तुमने. हॉबीज की, ट्रैवलिंग की. हॉबीज भी कर लिया, सब कर लिया. अब तो कितना चक्कर आ रहा है घंटा तुम्हें हुआ देख देख तुम्हारे के. पास? अब तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही मुझे. अच्छा ठीक है, चलो फिर खुदाफिज करते हैं. बाय. कर दिया ना. नहीं ना, हम फॉर्मल बाय करते हैं. ओके. थैंक यू सो मच. ये थी मायरा खान हमारे साथ. और ये नहीं है. अच्छा भाई ये है. यार ये सब डालूंगी मैं. बस ठीक है यार, खुदा हाफिज, बाय बाय. फॉलो कर लो, लाइक कर लो, नीचे कमेंट्स कर लेना और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना. ये औरत मुझे बाय नहीं करने देगी. लड़की और